Hello, dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. I welcome you all in today's learning session. So let's begin. Okay. So today I'm going to discuss the question number 3 of Chemistry ATP of the variant May June 2024 O2, and this paper is of 1 hour. I'll quickly jump to question number 3. So here's the question in front of you. Yes. Simply just read the question. The question is in front of you. You can have some time to read. Okay. So let's begin. I'll just simply come towards the statement of the question. State the observation which allows the student to make this conclusion. Okay, the student concludes that R contains sodium ions. So कैसे पता चलेगा कि sodium ions हैं? For this, we'll be needing the key for cation anions, which is provided by the end of this page. Sorry, by the end of this paper. I'll simply show you the key. So yes, this is the key. For sodium ions, what color we will get? Yellow color for the yellow flame color. I'll also show you the pictures. For sodium, we get this yellow color. So for the observation, we will write that we get yellow flame. Fine. Next question. Explain why the air hole on the Bunsen burner must be open when doing this flame test. ऐसी क्या वजह है कि इसको ओपन होना चाहिए? For this, I'll be showing you the picture in my slides. अगर क्लास ओपन नहीं होगा तो हमें ब्लू फ्लेम नहीं मिलेगा. We'll get a yellow flame. And if it is already yellow, then how are we going to identify the sodium ion, which is also yellow in color? तो उससे क्या होगा, हमारा कलर मास्क हो जाएगा. It will hide. तो इसका आंसर होगा क्लास to prevent the formation of yellow flame, which will mask the yellow color of the flame. इसके लिए मैं आपके लिए आंसर कंस्ट्रक्ट करता हूँ. ठीक है. ओके. द बंसन फ्लेम इज ब्लू. मैं लिखता हूँ इसका आंसर. द बंसन फ्लेम is blue with the hole open. ठीक है. और अगला है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट. अब मैं रीजन भी साथ लिखूंगा. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द येलो. लेट मी वाइडन प्लीज. मैं इसको थोड़ा सा वाइड कर दूं. अच्छा. प्रिवेंट द येलो फ्लेम उसको मैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ येलो बंसन फ्लेम मास्किंग द फ्लेम कलर. ठीक है. मेरी अब हैंड राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो आपने स्पेस के अकॉर्डिंगली अकोमोडेट आपने करना है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. Liquefaction adds dilute nitric acid to R. The student observes effervescence of a colorless gas which turns lime water milky. State the conclusions from these observations. Okay. अब क्लास को क्या कह रहे हैं? एक ऐसी गैस रिड्यूस हो रही है जो कि लाइम वाटर को मिल्की करती है. अब इससे हम कंक्लूजन क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं?
अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गैस, विल कम टूवर्ड्स अ गैस। ये गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। नेक्स्ट थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे हुई है? विल कम टूवर्ड्स द एनाइन। So which anion produces this gas on the addition of acid? So this is carbonate. So we have identified that this is carbonate anion which produces carbon dioxide gas when an acid is added, and this reduces effervescence. So this matches with the test and results. So this is carbon dioxide gas which is being released, and the anion is carbonate. ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि दिस इज carbon dioxide gas formed. Next, conclusion. Conclusion हमारी है कि R contains what basically? Carbonate ions. Oh, sorry. Okay. R. I hope this is clear. R contains carbonate ions. तो ये हमने 2 मार्क्स के लिए ये लिख दी है। ठीक है। 1 mark for the carbon dioxide and the other one is for carbonate. Right. Next, the student adds aqueous barium nitrate to some of the mixture from B1. The student concludes that R contains sulfate ions. State the observation which allows the student to make this conclusion. अच्छा, ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो स्टूडेंट को कन्विंस करेगी कि ये इसमें सल्फेट आयंस प्रेजेंट हैं? फॉर दिस वी हैव टू लुक एट द की सल्फेट का हमें टेस्ट देखना पड़ेगा along with the observations. So the test result for sulfate is white precipitate. ठीक है, white PPT. बड़े बच्चे white PPT से कंफ्यूज हो जाते हैं। PPT simply means precipitate, simply meaning an insoluble solid in the water, right? तो इसका हमें क्या आंसर मिलेगा? वाइट प्रेसिपिटेट। इसका हम ये लिख लेते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। ऑल राइट। ओके, in the next part, the student adds aqueous silver nitrate to some of the mixture from D1. The student observes a colorless solution. First of all, student, मैंने एक स्लाइड भी बनाई थी, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ फॉर ऑल द एनाइंस। ये देख लें आप जरा, ये देख लें। अब देख लें, सल्फेट के साथ हमने डाल दिया, क्या डाला था हमने? एक मिनट, डाला था बेरियम व्हाट? नाइट्रेट। अब बेरियम नाइट्रेट जो है वो सिर्फ देता है रिजल्ट फॉर सल्फेट, whereas नाइट्रेट इज फॉर द थ्री हेलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है। अब जब हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो सल्फेट के साथ तो ये क्या करेगा? ये तो कोई टेस्ट देगा ही नहीं, कलरलेस रहेगा। अगर हम की में भी चले जाएं, ये आप देख लें, की में देखते हैं। ओके, सिल्वर नाइट्रेट डाला। सिल्वर नाइट्रेट डालने पे हमें या तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है या क्रीम और येलो। दिस मीन्स के दिस थ्री एनाइंस आर कंप्लीटली एब्सेंट। तो इनके साथ ये नेगेटिव टेस्ट देगा, कलरलेस सॉल्यूशन। अदरवाइज इसको व्हाइट, क्रीम या येलो देना चाहिए था, प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब है क्लास, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दीज ऑल आर एब्सेंट। इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, वरना रिजल्ट कोई आता। और सल्फेट के साथ वैसे ही ये रिएक्ट नहीं करेगा, इट विल रिमेन कलरलेस। So what are we going to write? के नो क्लोराइड, नो क्लोराइड और
वेट अ सेकेंड, नो क्लोराइड, सॉरी कॉमा है ये, ब्रोमाइड आइन इज प्रेजेंट। ठीक है, दोनों के लिए नो है। फाइन। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट adds sodium hydroxide to R and warms the mixture. Describe a test and observation show that R does not contain ammonium ion. बेसिकली क्या है, अमोनियम आयन की हमने हमने उसका नेगेटिव रिजल्ट लिखना है कि अमोनियम आयन एब्सेंट है। इसको हमने क्या करना है बेसिकली, इसको हमने रिफ्रेश करके इसका नेगेटिव वर्जन लिख देना है अमोनियम आयन का। ये आप देख लें, अमोनियम आयन का क्या है, अमोनिया गैस रिड्यूस ऑन वार्मिंग। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि अमोनिया गैस बेसिकली प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे पहले हम अमोनिया गैस का टेस्ट हम देखेंगे क्या होता है। इसका होता है इट टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द डैम्प रेड लिटमस पेपर डज नॉट चेंज और रिमेन्स रेड। नेगेटिव इसका रिजल्ट ये है। ठीक है, बिकॉज नो अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस। नाउ आई विल राइट डाउन द आंसर फॉर यू। ये क्या हो जाएगा कि ओके, नो चेंज इन द कलर ऑफ, मैं लिखता हूँ नो चेंज, ओ सॉरी ये ऑब्जर्वेशन थी। हाँ, टेस्ट इसको आ जाएगा, टेस्ट विद रेड लिटमस पेपर। टेस्ट गैस विद डैम्प रेड लिटमस पेपर। यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ लिटमस पेपर। फाइन। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या होगी, नो चेंज इन कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर। ठीक है, नो चेंज इन कलर ऑफ डैम्प, डैम्प भी लिखना साथ, डैम्प रेड लिटमस पेपर। या आप ये भी कह सकते हैं इट डज नॉट टर्न टू ब्लू। है बेसिकली ये नेगेटिव रिस्पॉन्स ही है ना, हमने इसका नेगेटिव टेस्ट लिखना था। फाइन। नेक्स्ट थिंग, solution R is made from mixture of two different ionic compounds. Suggest the names of these two compounds. Okay. अब वो कह रहे हैं हमने नेम, टू आइंस के नेम सजेस्ट करने हैं। ये हमने ऑलरेडी इसके रिजल्ट्स निकाल लिए हुए हैं। ओके, किटाइन कौन सा प्रेजेंट है, सोडियम। ये हमें कहाँ से पता चला, ये देख लें फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ये देख लें सोडियम आइंस हैं। और हमें और कौन सा किटाइन मिला है, ये आप देख लें, हमें ये कार्बोनेट आयन का पता चला है। ठीक है, प्लस सेकेंडली वो क्या कह रहा है कि सल्फेट आयन्स हैं। ये आप देख लें, वी आर हैविंग सल्फेट आयन्स, देन वी आर हैविंग व्हाट, कार्बोनेट आयन्स। ये देख लें, ये हमें हमने खुद इवेलुएट किया फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसको मैं आपके लिए सर्कल कर देता हूँ। ये देख लें, ये हमारे दो क्या बेसिकली एनाइंस हैं। और हमें कोई मिल रहा है कोई केटाइन, क्वेश्चन को दोबारा एक दफा देखते हैं। नो। अब देखें क्लास, वी आर हैविंग टू एनाइन एंड वन केटाइन। ठीक है, तो इसका सिंपली ये मतलब है कि क्लास बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये एक ही केटाइन दोनों एनाइंस के साथ है। मैं लिख देता हूँ, ये हो गया सोडियम, वेट अ सेकेंड,
ये हो गया सोडियम। सोडियम क्या हो गया? कार्बोनेट। और क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। फाइन। ओके, तो क्लास ये मैंने इसके लिए लिख दिया। फाइन। नेक्स्ट। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही सेइंग कि, या पढ़ लें क्वेश्चन को आप, मैं फिर इसका आंसर आपको बताता हूँ। ओके। हाँ, वो कह रहे कि दो सोल्यूशन सोल्यूशन स्टूडेंट के पास बेसिकली है, क्या है, एक डिफरेंट सोल्यूशन है पी, एंड ही वांट्स टू फाइंड इसमें कौन सा आयन है, क्लोराइड और ब्रोमाइड, इन दोनों में से वो चेक करना चाह रहा है। स्टूडेंट आल्सो हैज पोटाशियम क्लोराइड एंड aqueous potassium bromide. So how will the student make sure that either one of them is present in this solution? Okay. अब इसके लिए क्या करेगा बेसिकली वो, he will do the halide test, means कि he will test for chloride and bromide. तो क्या करेगा? सिंपली he'll add silver nitrate and then he'll test the observed colors with the solution. ठीक है। अगर तो कलर मैच कर गया, इसका मतलब है कि वो वाला एनाइन प्रेजेंट है। ये आप टेस्ट आप पढ़ लें एक दफा ताकि आपको याद आ जाए। ये देख लें। अब आप दोनों के टेस्ट पढ़ें, क्लोराइड का भी पढ़ें और ब्रोमाइड का भी पढ़ें। तो कॉमन जो रिएजेंट है वो क्या है? नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों में कॉमन है, बट ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। फॉर क्लोराइड we'll get white precipitate, and for bromide we'll get green precipitate. I'll also show you the images for these precipitates. ये आप देख लें। ये देख लें। ये इस तरह का होगा, बेसिकली क्रीम होता है, थोड़ा ऑफ वाइट से, ये येलो होता है, ठीक है। और आयोडाइड, दिस इज क्रीम, दिस इज वाइट। ओके, नाउ आई विल कम बैक टुवर्ड्स माय क्वेश्चन। ओके, इसके लिए क्लास आंसर ये होगा, ये आप जरा लिख लें इसका, कि क्या होगा इसका आंसर। डू द हेलाइट टेस्ट बाय एडिंग सिल्वर नाइट्रेट। लेट मी राइट डाउन। डू द हेलाइट टेस्ट हेलाइट टेस्ट, या आप साथ लिख दें सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट एक रिएजेंट है जो कि दोनों में कॉमन है। टेस्ट ऑन पोटाशियम क्लोराइड एंड पोटाशियम ब्रोमाइड। फाइन। अब वो क्या कह रहे हैं? सेकंड पार्ट हम क्या लिखेंगे, हमने कर लिया। इन द सेकंड पार्ट विल व्हाट वी राइट, कि वील कंपेयर, हम कंपेयर करेंगे द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट्स विद द अननोन। ठीक है, जो अननोन हमें सोल्यूशन पी मिला, कंपेयर द कलर ऑफ द अननोन विद दीज
precipitates, let me write. ठीक है, तो जिससे कलर मैच हो गया तो वो प्रेसिपिटेट प्रेजेंट होगा। फाइन। नेक्स्ट। अब वो कह रहे हैं the student adds dilute hydrochloric acid to another solution of, sorry, and the gas is produced. The gas is passed through lime water. Describe how the gas can be passed through the lime water. You may draw a label diagram to help answer the question. Okay, it's very easy. हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, मैं आपके लिए डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये देख लें। हमारे पास ये देख लें, एक क्या है, एक बेसिकली एक रिएक्शन वेसल है जिसमें रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वील क्लोज इट विद द कॉर्क। ये देख लें, पहले मैं डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड। यस, हाँ, ये देख लें, इसमें से निकल रही है एक डिलीवरी ट्यूब ऐसे। ये डिलीवरी ट्यूब जा रही है बेसिकली एक लाइम वाटर में जा रही है। लाइम वाटर को हमने ऐसे, ये देख लें, ये बॉइलिंग ट्यूब में ऐसे रखा हुआ है ऐसे। दिस इज lime water and this is in contact with the lime water. This is lime water. ठीक है, ओके। हम्म, सॉरी, वो सिस्टम बस बीच में हेल्ड हो जाता है। यस, तो ये हमारी क्या होगी, डिलीवरी ट्यूब। एंड दिस इज आर व्हाट, रिएक्शन वेसल। रिएक्शन वेसल मींस कि जिस कंटेनर के अंदर रिएक्शन कंडक्ट हो रहा है। फाइन। नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब हाउ वी विल कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब आप इसके लिए ये लिख सकते हैं, यूज अ ड्रॉपिंग पिपेट, या आप कह सकते हैं डिलीवरी ट्यूब, collect the gas from the reaction vessel। ये आप, मैं आपके लिए लिख देता हूँ आंसर कि use the delivery tube। अच्छा, स्लैश आप ड्रॉपिंग पिपेट भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, मैं ये स्क्रीन में ऑफ करने लगा हूँ क्योंकि इससे इरिटेशन हो रही है, ताकि मैं ना फुल व्यू मिल सके, ये वाली जो ये है आंसर की वाली। आई विल सिंपली क्लोज दिस विंडो। ओके, नाउ इट्स मच मोर कन्वीनियंस फॉर अस। लिखते हैं इसका ड्रॉपिंग पिपेट। ठीक है, टू कलेक्ट द गैस फ्रॉम द रिएक्शन वेसल। ठीक है, उसके बाद बबल द गैस थ्रू द लाइम वाटर। ठीक है, बबल द गैस थ्रू
the lime water, sorry. और ये हमारा क्या है, बेसिकली क्या, रिएजेंट है, reagent. Fine. So now I have written the whole answer for you, as well as I have also drawn the diagram for you. So now our question 3 has been completely solved. You can have a look at it and do practice this question at home as well. So ये चीज आपको practice के साथ साथ आती है. It needs a lot of practice. Okay. I hope today's question is clear. Allah Hafiz. Take care. Have a nice day.